Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are we ready to receive the word of God today? क्या परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए आप तैयार हैं? You all have braved through the rains and come here. पूरा धाड़स दिखा के आप यहाँ पे बारिश में आए हो वचन ग्रहण करने के लिए। God will not leave you empty-handed. खाली हाथ परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I always say this that God looks, He knows the details of our life. और मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटी सी छोटी चीज़ हमारी ज़िंदगी की जो है वो परमेश्वर को पता है। He knows what kind of struggle you're going through. उनको पता है किस मुश्किलों से हम गुजर रहे हैं। He knows your prayers. वो आपके प्रार्थनाओं को जानते हैं। He knows everything. सब कुछ उनको पता है। Amen. And just allow God to touch you at the point of your need. और इजाज़त दे कि परमेश्वर आपकी जो ज़रूरत है उस जगह पे आपको वो छू पाए। And He will definitely work in this congregation today. इस सभा मंडली में आज वो ज़रूर कार्यरत करेंगे। Amen. Amen. Do you know how God works? आपको पता है परमेश्वर कैसे काम करते हैं? Do you know how God works? आपको पता है परमेश्वर कैसे काम करते हैं? Through His word. उनके वचन के द्वारा। Amen. Amen. There was darkness and void all over the earth. अंधकार छाया हुआ था, खालीपन पूरे पृथ्वी पर भरा हुआ है। And God spoke. और परमेश्वर ने अपने शब्द को बोला। He sent His word. अपने शब्द को उन्होंने And His word formed the earth. और उनके शब्द के द्वारा पूरी पृथ्वी निर्माण हुई। Hallelujah. हालेलुया। 2000 years ago, 2000 साल there पहले was darkness all over the earth. पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ। Again, और you know what the solution which the Father had? पता है इसके लिए सुझाव पिता के पास में क्या था? He sent His word. अपना वचन उन्होंने भेजा। And the word of God, Jesus Himself, came on this earth. और उनका जो वचन है यानी कि उनका पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। Because Jesus is the word of God. क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वो वचन है। He came and made all things right. उन्होंने आकर सारी चीजें सही कर दी। He is the light of the world. वो जगत की रोशनी है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the light of the world. यीशु मसीह जगत की रोशनी है। And then Jesus says to His disciples, और जब यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, now you are the light of the world. अब जगत की रोशनी आप हो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Those who follow me will walk in light. They will never walk in darkness. जो मेरे पीछे चलते हैं वो कभी अंधकार में नहीं रहेंगे, वो रोशनी में रहेंगे। What a wonderful God we serve. कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर की हम सेवा What करते a हैं। privilege to be a disciple of Jesus Christ. क्या ही वो सौभाग्य है हमारे पास में कि हम उनके चेले करके बुलाया जाए। So today इसलिए we आज have the opportunity to learn from His word once again. दोबारा हमारे पास में मौका दिया गया है कि हम वचन से उसे सीखें। How many of us are ready? कितने लोग तैयार हैं इसलिए? Amen. Just open your hearts अपने दिलों को आप खोल and दें let the Holy Spirit minister to you. और पवित्र आत्मा आपके दिलों से सेवकाई कर। Doesn't matter who is speaking. चाहे कोई भी वहाँ पे क्यों ना बात करे, The word of the Lord is living. It is alive परमेश्वर का जो वचन है वो जीविता है and it will work. और वो कार्य करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Okay. Before I begin, और आगे बढ़ने से पहले you know, I just want to tell you a small testimony. मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। So when we came to this place, जब हम इस जगह पे आए, I remember saying that we are going to be a influence and impact over the people surrounding us over this area. तो मैंने ये कहा था कि हमारे इस सभा के द्वारा हम इसके आजू बाजू जो लोग हैं उन पर एक प्रभाव डाल पाएंगे। A couple of weeks back, the manager of this hall, कुछ सप्ताह पहले जो इस हॉल का मैनेजर है, he comes up to us and these are his words. He says that I really enjoy what you guys speak, what the speaker is, he said speech, I enjoy the speech. और उन्होंने आकर कहा कि आपकी सभा में जो भाषण दिया जाता है मुझे वो पसंद आता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. And then he came up to me और वो हमारे पास में आए and he said there are so many people who come to our hotel और उन्होंने कहा इतने सारे लोग हमारे होटल में आते हैं and some of them also
inquire if we can come to the church. और आकर ये पूछताछ भी करते हैं कि हम मंडली में आ सकते हैं। Hallelujah. Yesterday, कल I got 2 calls 2 फोन कॉल आए and they were inquiring about the church. और चर्च के बारे में वो जानकारी मांग रहे थे। And I asked them, where did you get a number from? और हमने उनसे पूछा कि आपको नंबर कहाँ से मिला? One of them got it from Google. और उनमें से एक को गूगल में से मिला Another person got it from the hotel. और उसमें से दूसरे इंसान को होटल वाले ने दे दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is at work. परमेश्वर कार्य कर रहे He हैं, is at work. वो कार्य कर And रहे in हैं। the days to come, we are going to see great and mighty things happen through us. आने वाले दिनों में महान कार्य होते हुए हमारे द्वारा हम देखने वाले हैं। Amen. Let's get into the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन में बढ़े। 1 John पहले chapter यूहन्ना, number 2 दूसरा अध्याय and verse 12 onwards. और 12वें वचन से आगे, पहला यूहन्ना 2:12। In my Bible, मेरे पवित्र शास्त्र the में heading of this passage is their spiritual state. आत्मिक उनका जो स्तर है वो ऐसा शीर्षक दिया है। And there are 3 spiritual levels that John is talking about here. और 3 पड़ाव है जिसके बारे में यूहन्ना बात कर रहे हैं। And I'll read the verses for you. और मैं आपके लिए वचन I पढ़ूंगा। won't read the whole passage, but the verse number 12 talks about the first level, which is little children. और पहला पड़ाव जो है वो बालकों के बारे में है। And then verse number 13 talks about fathers. और 13वां वचन पितरों के बारे में बात करता है। Verse 13 and the second part talks about young men. और उसका 13वां वचन जो है उसका शेष भाग जो है वो जवानों के बारे में बात करता है। And then again he's talking to children, to fathers and to young men. फिर बाद में वो बालकों से बात कर रहे हैं, पिता से बात कर रहे हैं और जवानों से बात कर रहे हैं। So he's writing to the little children तो वो बालकों से कह रहे हैं because he says your sins are forgiven. उन्होंने कहा है कि आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। He writes to the fathers वो पिताओं से कह रहे हैं and he says because you have known him who is from the beginning. आदि से जो है उसके बारे में आप जानते हो। And I write to you young men और जवानों में तुमसे इसीलिए लिखता हूँ because you have overcome the wicked one. क्योंकि तुमने दुष्ट पर जय पाई है। Hallelujah. हालेलुया। In our Christian walk, हमारे मसीह चलन में there are 3 levels that we go through. 3 पड़ाव है जिससे हम गुजरते हैं। When we get saved, जब हमारा उद्धार होता we है are like little children. हम छोटे बालकों के समान And हैं। for all you parents there, और सारे जो माँ बाप यहाँ पे हैं you know how little children are. आपको पता है छोटे बच्चे कैसे रहते हैं? You know how babies are, right? बच्चे कैसे छोटे बच्चे कैसे रहते हैं? You need to give them everything. सारी चीजें आपको देनी पड़ती है उनको। Correct? हाँ या ना? Correct? हाँ या ना? Anybody of you experienced, small children, 1-2 years old, going in the kitchen and washing the dishes, cooking food? I've never seen that. क्या आप में से किसी माँ बाप ने ऐसा देखा है क्या? 1-2 साल का बच्चा किचन में जाता है और अपना जो प्लेट है उसे धोता है? मैंने तो कभी ये अनुभव नहीं किया है। Correct? हाँ या ना? They aren't even potty trained. और उनको ये भी नहीं पता है कि अपनी खुद की पॉटी किस तरीके से करते So initially you have to use diapers, correct? हैं। तो पहले तो हमें डायपर का इस्तेमाल करना पड़ता I है think उनके लिए। David has to buy a lot of diapers now. भाई डेविड को बहुत डायपर्स खरीदने पड़ते होंगे अभी। But spiritually, लेकिन आत्मिक तरीके when we come to the Lord, जब हम परमेश्वर के पास में, when we come to the faith, जब हम उस विश्वास में आते हैं, we are like that. हम इसी प्रकार से होते हैं। Correct? हाँ या ना? Our sins are forgiven. हमारे पापों की क्षमा होती है। God is answering all our prayers. परमेश्वर हमारे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। I prayed for this small thing, God has answered. और ये छोटी चीज के लिए मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने वो उत्तर भी दे दिया। Just like little children. बच्चों की नाई। Correct? हाँ या ना? Little children, if they want something, they cry. और छोटे बच्चों को अगर कुछ चाहिए रहता है वो क्या करते हैं? वो रो देते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. Correct? I want this, I want that. And the parents, because of their stubbornness, they give it sometimes. और क्योंकि बच्चे हटीलापन दिखाते हैं तो माँ बाप कभी-कभी उस हटीलेपन की वजह से दे भी देते हैं उनको। Then comes the second stage. फिर दूसरा पड़ाव आता है, Young men. नौजवान। Young men, they are overcomers. और जो
जवान लोग रहते हैं वो जयवंत लोग रहते हैं। You know, now they've come to a level where they have started to overcome sin. अब वो इस पड़ाव पे आते हैं कि उन्होंने पाप पर जय पाने के लिए शुरुआत कर दी है। Now they are at a level where, you know, they want to do something for the Lord. अब वो इस पड़ाव पे है, इस स्तर पे है जहाँ पे वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। And I believe some of us are here और मैं विश्वास करता हूँ हम में से कुछ लोग यहाँ पे हैं who are young men and women in the faith. जो विश्वास में नौजवान हैं। But then there is a third level, लेकिन एक तीसरा पड़ाव आता है and that is the level of a parent. जो एक माता पिता बनने का पड़ाव। And I believe this is the highest level that you can go to in your spirituality. और आपके आत्मिक जीवन में ये एक उच्च पड़ाव है जहाँ पे हम जा सकते हैं Being a father. एक पिता होने की। You know, in so many years of being in church, और कलीसिया में इतने सालों से होने की वजह I have से seen fathers who are 15 years old और मैंने ऐसे पिता देखे हैं जो 15 साल के हैं and little children who are 65 years old. और छोटे बच्चे जो 65 साल की उम्र के में हैं। I'm talking spiritually. आत्मिक उम्र में मैं बोल रही हूँ, आत्मिक स्तर में मैं बोल रहा हूँ, Okay? Spiritually. आत्मिक तरीके से। And I don't know what level you are at, मुझे नहीं पता आप किस पड़ाव में हो, but you can start thinking about this today. लेकिन आप इस पर अभी मनन कर सकते हैं। Where am I? मैं कहाँ पे हूँ And how can I go ahead? और उस पड़ाव से ऊपर मैं कैसे जा सकता हूँ। Amen? आमेन, Amen? आमेन। So when John is talking about fathers, he's not only talking about the males. और यूहन्ना जब पिताओं के बारे में बात कर रहा है, पालकों के बारे में बात कर रहा है, तो सिर्फ पुरुष प्रधान पिताओं के लिए नहीं, He's also talking about the women. और वो स्त्रियों के बारे में भी बात कर रहे हैं। If you go to Genesis 1:26, उत्पत्ति 1:26 में अगर हम जाते I हैं, think most of us are aware of this verse. हम में से बहुतों को ये वचन पता है। When God wanted to create Adam and Eve, जब परमेश्वर को आदम और हवा बनाने थे, the verse says this, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. फिर यीशु ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश की पंछियाँ और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। And the next verse says, और अगला ही वचन कहता है, so God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। Hallelujah. Hallelujah. The correct word for man here is actually humankind. और मनुष्य के लिए मनुष्य जो पुरुष है उसे मनुष्य जाति करके ऐसा नाम वहाँ पे लिखा गया है। So when we listen to this verse initially, जब शुरुआत में हम इस वचन को पढ़ते हैं, it sounds God only wants to create a man, like a male figure. तो सुनाई देने में तो वो ऐसा सुनाई पड़ता है कि परमेश्वर को सिर्फ एक पुरुष प्रधान जो प्रतिमा है उसे उनको बनाना। But in the mind of God, when God is thinking about creating a man, He's thinking about male and female. लेकिन परमेश्वर के मन में जब वो मनुष्य जाति की सृजनहार वो बन रहे थे, जब उनको वो बना रहे थे, तब एक पुरुष और एक नारी उन दोनों का विचार उनके मन में था। So John here is talking about fathers and mothers. तो यूहन्ना जो है वो एक पिता के बारे में और माता के बारे में बात कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Fathers and mothers. पिता जो है और माताएं जो है। The church has many pastors, कलीसिया में बहुत से पासबान हैं, lot of staff, बहुत सा स्टाफ है, but today the modern church has very few fathers and mothers.
लेकिन आजकल की कलीसिया में बहुत ही कम एक माता है और पिता है उसमें। And church, we all need to strive to go to that level where we become like a father to somebody. और कलीसिया आज हमने ये यत्न करना है जहाँ पे हम उस पड़ाव पे आ जाए जहाँ पे किसी और के लिए हम एक माता बन पाए, एक पिता बन पाए। In 1 Corinthians 4 and verse number 15, पहला करंथियों 4:15 Paul says something very important. पौलुस कुछ तो मुख्य कह रहा है। He says, for though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हें पिता हुआ, तुम्हारा पिता हुआ। Hallelujah. हालेलुया। 10,000 instructors or 10,000 teachers. देखिए, सिखाने वाले या फिर कोई जो शिक्षक है वो 10,000 हो सकते हैं, But only one father. लेकिन एक ही पिता है। Today if you go to YouTube, अगर आप YouTube पे जाएं, you can find the sermons of the best Bible teachers. उत्तम से उत्तम पवित्र शास्त्र के सिखाने वालों का आपको वीडियो उस पे मिल जाएगा And all of them are very good. और वो सब लोग उत्तम हैं। Even I listen to them. मैं भी उनका सुनता हूँ ये वीडियो। So nothing wrong in listening to them. देखिए, उनका वीडियो सुनने में कोई गलत बात नहीं है, But they cannot be your father. लेकिन वो आपके लिए आपके पिता नहीं हो सकते, They cannot be your mother. आपके लिए माता नहीं हो सकते। That is why we have this place. इसीलिए हमारे पास भी ये जगह है So that we can be one family. ताकि हम एक परिवार हो पाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is why we need to physically come to the church. इसीलिए शारीरिक तौर पे मंडली में आने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Okay, let me give you an example. मैं अभी एक उदाहरण देता हूँ। How many parents are here? कितने माँ बाप यहाँ पे हैं? Parents, grandparents. Yes. दादी, दादा, नाना, नानी, कितने लोग हैं यहाँ पे यार? माता पिता कितने हैं? How many of y'all can parent your child online? अपने बच्चों का पालन पोषण कितने लोग ऑनलाइन कर सकते हैं? कर सकता है कोई? नो, कैन एनीबडी डू दिस? Will anybody choose to do that? कोई ऐसा चुनाव भी करेगा क्या? A good parent won't. अच्छा जो माँ बाप है वो तो कभी ऐसा नहीं सुनेंगे, Correct? हाँ या ना? How will you change diapers online? Just thinking about that. कितने लोग ऑनलाइन डायपर बदल सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ कैसे होगा वो। See, you might be coming to church for a long time now. हो सकता है बहुत समय से आप कलीसिया में आ रहे हो And maybe everything is good for you. God has blessed you. Financially, you are at a good place. हो सकता है सारी चीज़ें आपके साथ में अच्छी चल रही है, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, आर्थिक तौर पे परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, But don't be satisfied there. लेकिन वहीं पे आप तृप्त ना बैठे। Ask the Lord, Lord, what do you want me to do? परमेश्वर से ये मांगे, पूछे कि परमेश्वर और क्या कर सकता हूँ मैं Who तुम्हारे do लिए, you want me to father? और किसके लिए मैं एक पालक बन सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Brother, God has blessed me. भाई, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया I है, have wonderful testimonies. अद्भुत गवाहियाँ हैं You know, मेरे there पास। was a time where I was struggling to get a job. और मैं अपने जिंदगी में ऐसे पड़ाव पे था जहाँ पे मुझे काम नहीं मिल रहा था। That was 10 years back. ये 10 साल पहले था, But from 10 years, you know, God is blessing me. लेकिन 10 सालों से परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। Hallelujah. हालेलुया, Very good. बहुत बढ़िया। But now what? आगे क्या? You know, a lot of people who come to church are satisfied where they are. बहुत से लोग जो कलीसिया में आते हैं, जहाँ वो है वहाँ पे रहकर वो तृप्त मानते And हैं। I'm not talking about contentment, okay? और मैं तृप्तता के बारे में नहीं बात कर रहा We हूँ। need to be content with what we have. जो हमारे पास में है उससे हमने तृप्त होना है, That is what the Bible teaches us. यही पवित्र शास्त्र सिखाता है। But some of us are comfortable where we are. लेकिन कुछ लोग आराम फरमाते हैं जहाँ पे वो है वहाँ पे रहकर। Am I speaking the truth? क्या ये मैं सच बोल रहा हूँ आपसे? अरे 20 साल से चर्च जा रहा हूँ, From 20 years I'm going to church. वो मुझे क्या सिखाएगा?
what this person, this novice person is going to teach me. Maybe this is not what we say, but this might be our subconscious thinking. देखिए, हो सकता है हम ये बोल के ना दिखाएं, लेकिन कभी कभार मन में हो सकता है हमारे विचार आ जाए। But ask the Lord, लेकिन परमेश्वर से पूछे, Lord, in this season, इस मौसम में what do you want me to do? आप क्या चाहते हैं? What is it that you want to do in my life? मेरी जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो? So that I can not only be blessed and satisfied, ताकि मैं सिर्फ आशीष ना पाऊं और मैं वहाँ पे संतुष्ट ना हो जाऊं, but so that I can father somebody. ताकि मैं किसी के लिए एक पालक बन So that I can become like a parent to somebody. ताकि मैं किसी के लिए माँ बाप बन पाऊं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। The church is lacking fathers and mothers today. आज की जो कलीसिया है उसमें पालकों की कमी है God is calling us. और परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। Hallelujah. God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। God is calling me परमेश्वर मुझे बुला to रहे हैं become a father to many people. और बहुत से लोगों के लिए मैं एक पिता बन पाऊं। The next verse number 16, 1 Corinthians 4 and verse number 16. पहला करंथियों 4:16। Paul gives us a very important principle of fatherhood. और पिता बनने के लिए एक नियम वो हमें दे रहे हैं। He says, therefore I urge you, imitate me. इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। Imitate me. जो मैं कर रहा हूँ उसे इसके समान तुम करो। You know, when we send our kids to the school, जब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, we are not expecting the teachers to become like parents. हम ये अपेक्षा तो नहीं करते हैं कि जो शिक्षक है वो माँ बाप बन जाए। And some parents, you know, I've heard them say, "अरे बरं झालं गेला स्कूलला, अच्छा हो गया गया स्कूल को." और मैंने सुना है ऐसे बहुत से बालक बोलते हैं, थैंक गॉड माई चाइल्ड इज गॉन टू स्कूल। But we expect them to teach our kids, not to parent our kids. हमारी ये अपेक्षा रहती है कि जो शिक्षक है हमारे बच्चों के लिए वो माँ बाप ना बने, लेकिन वो उनको सिखाएं। So a teacher will explain concepts and, you know, teach their subject to the children. और जो शिक्षक रहता है उनके विषयों को वो गहराई में समझाता But because the child is not living with the teacher cannot be a parent to the child. लेकिन क्योंकि वो जो शिक्षक है, वो जो अध्यापक है, वो बच्चों के साथ में नहीं रहता, इसलिए वो उनको जीवन शैली नहीं सिखा सकता। But a parent lives with the child. लेकिन जो माँ बाप है वो अपने बच्चों के साथ जीते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And you know what happens? आपको पता है क्या होता है? Habits are caught, they are not taught. आदतें जो है वो ऐसे पकड़ जाती है, उसे सिखाया नहीं जाता। Let me repeat that again. Habits are caught, they are not taught. जो आदतें हैं वो जो पकड़ी जाती है, जो दिखती है उसे पकड़ लेते हैं, उसे सिखाया नहीं जाता है। 2 days back, 2 दिन पहले a mother came to my house. एक माँ मेरे घर में आई। That time I was not there, I was out somewhere. मैं कहीं बाहर था, But Grace was there. ग्रेस वहाँ पे थी And she called me from Grace's phone. और ग्रेस के फ़ोन से उसने मुझे फ़ोन किया। She has a son who is 14-year-old. और 14 साल का बेटा है, He's in 10th right now. 10वीं कक्षा में है। And she started weeping on the phone. और वो फ़ोन पे रोने लगी And I started talking to her. और मैं उससे बात करने And लगा she slowly started opening her heart. और अपना दिल खोल के वो बयां करने लगी। You know, she got a call from the principal of her son's school. और उसके बच्चा जो स्कूल में जा रहा था, उसके प्रिंसिपल ने उसको फ़ोन किया। And the kid, you know, he's a very bright kid. और बहुत ही होशियार ऐसा बच्चा है वो। But of late, because of the situation at his home is not that great. You know, because of that, he's sleeping in school. क्योंकि घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए बच्चा क्या करता है कि स्कूल में जाकर वो सो जाता है। And you know, I've been praying for that family. और उस परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा। But that mother came up and said कि my son broke my phone. और माँ ने आकर कहा कि मेरे बेटे ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, That is why I had to come at your house. इसलिए मुझे आपके घर में आना पड़ा। And
while I was praying and talking to her, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उससे बात कर रहा था, few years back I remembered an incident कुछ साल पहले मुझे एक हादसा ऐसा याद है where the father, because he got angry on the son, the same kid, he broke his instrument. क्योंकि ये जो पिता है वो अपने बेटे पे उसको गुस्सा आया था, उसने अपना इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया था। And I told that mother, और मैंने उसकी माँ से कहा, you know where did he learn this from? आपको पता है उसने कहाँ से उसको ये आदत लग गई? You remember that one incident 4 years back? आपको पता है 4 साल पहले, Maybe not 4 years, 2-3 years back, 2-3 साल पहले हो सकते हैं, 4 साल, where the father broke your son's instrument जहाँ पे इस पिता ने अपने ही बेटे का वो इंस्ट्रूमेंट उसने तोड़ दिया because he got angry. क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था। This is not anger, this is actually rage. और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है ये। And she remembered that incident. और उसको वो वाक़यात याद आया। And ठीक है, I think Sandesh will sort that out. So she remembered that incident, उसको वो वाक़यात याद आया and I told her, और मैंने उसको बताया, you know where he learned this from? आपको पता है उसको ये आदत कैसे लगी है? He didn't learn it in school. उसने ये सीखी नहीं है पाठशाला में। When I talked to that kid, जब मैं उस बच्चे से बात करता हूँ, very bright kid, बहुत ही होशियार he बच्चा है, knows what is right and what is wrong, क्या सही है क्या गलत है उसे पता है, but he has caught something. लेकिन उसने ये आदत पकड़ ली है। I have been trying to teach him. मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रहा I हूँ, have been trying to do Bible studies with him, मैं उसके साथ में बाइबल स्टडी करने की कोशिश कर but रहा he has caught something from his parents. हूँ, लेकिन उसके माँ बाप से उसे ये आदत लग गई है। Now those habits are dictating his life also. अभी ये जो आदत है उसके जीवन पे वो शासन कर रही है। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है? Habits are caught, they are not taught. आदतें लग जाती है, उसे सिखाया नहीं जाता। And when you want to become a father to somebody, जब हम किसी के लिए एक पालक बनने की कोशिश करते हैं, you know, Paul is not expecting you to become a teacher. पौलुस जो है वो ये अपेक्षा नहीं कर रहा कि हम उनके लिए कोई शिक्षक बन He जाए। says, imitate me. वो कह रहे हैं मैं जो कर रहा हूँ वैसे ही चाहो तुम चलो। That means you look at me, यानी कि तुम मुझे देखो, see what I'm doing. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, And for them to see what you are doing, you have to be with them. और ताकि वो देखे कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या करना है, उनके साथ रहना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Father, being a mother is a responsibility. देखिए माँ बाप बनना एक जिम्मेदारी की काम है। Hallelujah. हालेलुया। And God is expecting all of us, you know, to grow to that stage where we are fathering somebody, where we become like a mother to somebody. देखिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में आत्मिक स्तर में हम ऐसे बड़े हो जाए, प्रौढ़ हो जाए, ताकि हम किसी के लिए एक माँ बाप बन पाए। Do not be comfortable where you are. आराम ना फरमाए जहाँ पे आप हो अभी। Hallelujah. Can you turn to your neighbor and say this to them? अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ के आप ये कहिए, Do not be comfortable where you are. जहाँ पे हो वहाँ पे बैठ कर आराम ना करो। Do not be comfortable where you are at. जहाँ पे हो वहाँ पे बैठ कर आराम ना करो। Sometimes, you know, when we go to home center कभी हम होम सेंटर में जब जाते to हैं buy furniture for our living room, फर्नीचर लेने के लिए हमारे लिविंग रूम में, we want the most comfortable sofa, हम चाहते हैं एक आरामदायी सोफा हमें मिले, so that when I come back from work, you know, I'll एकदम आराम से सोफे में बैठ जाऊंगा. ताकि मैं जब काम से आता हूँ थका मांदा तो मैं पैर फैला के वहाँ पे उस सोफे पे आराम कर With a पाऊँ, cup of chai or coffee. और वो आराम फरमाते हुए सोफे पे मैं चाय या कॉफी चुस्की मारूं। But spiritually, never sit in that comfortable chair. लेकिन अगर आत्मिक तरीके से देखा जाए तो उस कुर्सी पर, उस सोफे पर आप ना बैठे। Hallelujah. Hallelujah. Can you say this after me? मेरे पीछे बोलिए, I am getting up from my chair of comfort. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
The Lord is calling so many people today to grow spiritually, to go to a next level spiritually. देखिए परमेश्वर बहुत से लोगों को बुला रहा है ताकि वो आत्मिक स्तर पे वहाँ पे बड़े हो जाए, दूसरे पड़ाव में वो आ जाए। Okay, we saw from the life of Paul. पौलुस की जिंदगी से हमने देखा। Now let's go to the life of Jesus. अब यीशु मसीह की जिंदगी की तरफ In Mark 3 and verse number 14, मरकुस 3:14 when Jesus was appointing the 12 disciples, जब यीशु मसीह वो 12 शिष्यों को नियुक्त कर रहे थे, Mark is recording the purpose of why Jesus is choosing those 12 people. मरकुस बतला रहे हैं कि यीशु मसीह वो 12 वो शिष्यों को क्यों नियुक्त कर रहे थे। Let us read that. आइए उसे पढ़ें। Mark 3 and 14. मरकुस 3:14 Then he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। The first reason or the purpose why Jesus chose the 12 was not so that he can just send them out to do miracles, to preach the kingdom. देखिए जब यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को वहाँ पे नियुक्त किया तो वो ऐसे ही बाहर जाकर प्रचार करने के लिए या फिर चमत्कार करने के लिए उन्होंने वहाँ पे नहीं रखा। He chose them so that they could be with him. उन्होंने उनका चुनाव किया ताकि ये जो 12 शिष्य थे वो उनके साथ में रहे। And then after that, if you read the next verse, you know, Mark lists out what they need to do. और फिर बाद में मरकुस एक यादी बनाते हैं कि उनको क्या करना है। Preach, heal the sick, cast out demons. और वो प्रचार करे, चंगाई दे, दुष्ट आत्माओं को निकाले। But before all of this, Jesus wanted to be with his disciples. लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह चाहते थे कि वो अपने शिष्यों के And साथ this is रहे। very important. और ये महत्वपूर्ण है। We need to be with our children. हमने अपने बच्चों के साथ में रहना है। I'm talking about spiritual children. मैं आत्मिक बच्चों के बारे With में, our disciples. हमारे शिष्यों Only then they will see how you live your life. फिर ही वो देख पाएंगे कि आप अपनी जिंदगी कैसे Only जीते। then they are going to see how you behave. फिर आप किस तरीके से बर्ताव करते हैं वो देख And पाएंगे। only then they will be able to imitate you. फिर ही वो आपका प्रतिरूप कर पाएंगे। You know, I feel it is very easy to preach from here. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से खड़े होकर प्रचार करना बहुत आसान है। And these days too, it is very easy because of the internet. और देखिए आज की जो जगत में अगर देखा जाए तो इंटरनेट की वजह से प्रचार करना बहुत आसान हो गया है। But to disciple, लेकिन किसी को शिष्य बनाना, but to become a father or a mother to somebody, किसी के लिए एक माता पिता का रूप धारण करना, that is the most difficult job. ये एक मुश्किल ऐसा काम है। And when Jesus sent out his disciples, जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को वहाँ पे भेजा, he's not just sending them out just like that. ऐसे ही उनको नहीं भेज रहा था वो, You know, he taught them parables. उनको छोटी छोटी कहानियों के द्वारा उन्होंने सिखाया। He taught them many principles of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के बहुत से नियम उन्होंने सिखाए। But more than that, लेकिन उससे भी बढ़कर you know what Jesus did? आपको पता है यीशु ने क्या किया? He was eating food with his disciples. वो अपने चेलों के साथ में खाना खाते थे। He was going to weddings with his disciples. शादियों में जाते थे अपने चेलों के साथ में। And there, और फिर the वहाँ disciples were catching what Jesus' lifestyle was. जो चेले थे वो देख रहे थे कि यीशु मसीह किस प्रकार की जीवन शैली को जी रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। That is why Paul says in another place, इसलिए पौलुस और एक जगह पे कहते हैं, imitate me as I imitate Christ. जैसे मैं मसीह की तरह वो प्रतिरूप करता हूँ उसी तरह आप भी प्रतिरूप So there are two प्रतिरूप हो। principles here. कुछ ऐसे नियम हैं। We need to be a disciple of Christ. हमने यीशु मसीह का चेला बनना है। The first thing that we need to do is be with him. सबसे पहली चीज हमने उनके साथ में रहना है। And as you spend time with him, जैसे आप समय बिताते हो उनके साथ, you catch on the habits of Jesus Christ. यीशु मसीह की जो आदतें हैं उसी के समान आप करो। Hallelujah. हालेलुया। And now as I imitate Christ, और जैसे ही मैं यीशु मसीह की प्रतिक्रिया करता हूँ, I say to my spiritual children, मैं अपने आत्मिक बच्चों से भी कहता you हूँ, imitate me. आप भी उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया।
Hallelujah. हालेलुया। We all need to go to that level. हमने उस पड़ाव पे जाना We है। need to strive to go to that level, my friends. हमने यत्न करना है उस पड़ाव पे जाने के लिए। When Jesus asked his disciples to go and disciple other people, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जाओ और दूसरे शिष्य तुम बनाओ, for I think many months we used to recite Matthew 28:18 to 20. मत्ती 28, 18 से 19 हम बहुत समय तक वो कबूल कर रहे थे। When Jesus sent out his disciples, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा he didn't send them out with so many sermons. और उन्होंने बहुत से ऐसे संदेश के द्वारा नहीं भेजा, He actually lived with them. और उनके साथ में वो जिए, He ate with them. उनके साथ में उन्होंने खाना He खाया, went to parties with them. उनके साथ में वो जश्न में गए। He lived with them for 3.5 years. 3.5 साल तक वो उनके साथ में जिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is a true disciple. यही एक सच्चा शिष्य है। And today, और आज as much as we need to be disciples, जितना ही ज्यादा हमने वो चेला यीशु का बनना है, we also need to disciple others. हमने दूसरों को भी शिष्य बनाना We है। need to become a father and a mother to somebody. किसी और के लिए हमने एक पालक होना है। The best example of a father can be seen in Luke chapter 15. और उत्तम उदाहरण अगर पिता का देखना है तो लूका 15 में हम देख सकते We हैं। all know that story of the prodigal son. उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपको पता है। When the son came back to the father, जब जो बेटा है वो वापस अपने पिता के पास में आ the गया, Bible says that the father's eyes were filled with compassion. और पवित्र शास्त्र बयां करता है उस पिता के आंखों में दया आ गई। And what did he do? और उसने क्या किया? He did something that a teacher would not do. एक शिक्षक नहीं कर सकता, ऐसी चीज उसने अपने बेटे के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He did only what a parent can do. सिर्फ एक पिता कर सकता है, ऐसी चीज उसने की। And we need to receive that heart today. और आज वो दिल हमने ग्रहण करना है। So can we all pray? क्यों ना हम प्रार्थना करें? See, I'm not taking you on a guilt trip देखिए, एक दोषी भावना पे मैं आपको नहीं लेके जा रहा हूँ that you have not done enough. कि आपने पर्याप्त नहीं किया है। I'm just giving you some principles from the Word of God परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ नियम सिखा, of what we need to do हमने क्या करना है। if you want to imitate Christ. अगर मसीह के समान आपको प्रतिक्रिया करनी है, And as you imitate Christ, और जैसे ही उनके समान आप प्रतिक्रिया others करें, are going to start imitating you. दूसरे भी उसी के समान करना शुरू करें। And you will go from being a child और एक बालक से आप to a young person एक जवान के पड़ाव में आओगे, to a father and mother. फिर एक पालक बनने के And पड़ाव। I believe this is what God is expecting from this church. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज कलीसिया से यही यीशु मसीह अपेक्षा करते हैं। You know, part of our vision is to disciple people. हमारे दृष्टांत का एक हिस्सा है कि हम वहाँ पे चेले बनाएं। Not only that we become disciples, but we become disciple makers. सिर्फ इतना ही नहीं कि हम उनके चेले बने, लेकिन हमारे द्वारा दूसरे चेले उत्पन्न हो, ये हमारा दृष्टांत। We will always be disciples. हम हमेशा के लिए उनका चेला We बनेंगे, will always be growing. हमेशा हम बढ़ेंगे। But if you think you're at a place where you know the word of God, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इस स्तर पे हो जहाँ पे आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, at least the basics, the foundations. वो जो नींद की चीजें हैं वो आपको अगर पता है, If you feel like you have been experiencing the power of the word in your life, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस वचन की ताकत को आपने आपके जीवन में अनुभव किया है, if you have been experiencing the peace of God in your family, अगर आपके परिवार में परमेश्वर की शांति को आपने अनुभव किया है, that is good. बहुत बढ़िया। But it's also time to share it with somebody. लेकिन अब वो समय आ गया है कि किसी और के साथ में हम इसे बांटें। You know that there are so many people who are not well in our church. हमारे कलीसिया में इतने सारे लोग बीमार हैं। If we are well, अगर हम ठीक हैं we need to visit them, go pray for them. तो उनको भेंट दो, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is what a parent would do. यही एक पालक करता है। Amen. Amen. आमीन। You know why? Have you heard of the Dead Sea? वो डेड सी के बारे में आपने सुना है क्या? Dead Sea?
डेड सी के बारे में It's सुना है? also called, I think, salt sea, something, saltwater lake, something like that. हाँ, वो नमक का पानी उसमें है। The reason why there is no life, no aquatic life there, क्यों वहाँ पे जीव जंतु नहीं पाए जाते उस पानी में? it is because it is hypersaline. क्योंकि उसमें नमक का स्तर बहुत ज़्यादा है। It has too much of salt. बहुत ज़्यादा नमक है उसमें। And you know why? आपको पता है क्यों? Because for a long time, for hundreds of years, there is an inlet, but there is no outlet. क्योंकि बहुत से सालों से वो पानी जो है वो बाहर नहीं गया है, वो पानी वहीं पे इकट्ठा है, वहाँ से अंदर कोई पानी नहीं है। You know which river flows into the Dead Sea? आपको पता है कौन सी वो नदी है वो उसके अंदर वो बहती है? You know which river? आपको पता है कौन सी नदी? Jordan River. यारदेन की नदी। You know the same river where John the Baptist was baptizing. और वही जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा बपतिस्मा दे रहे थे, Same river where Jesus was baptized. जहाँ पे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। You know, such a holy river is coming into the Dead Sea. ये पवित्र नदी जो है वो डेड सी में आ रही है। But क्या हो गया? What happened? It is still dead. अभी भी वो मरी हुई है, No life. उसमें जिंदगी नहीं। Why? क्यों? Because only receiving. सिर्फ ग्रहण कर रही है, देने का नहीं. not to give। Hallelujah. Let's not be like that. हम उसके समान न रहें। If we have received peace from God, अगर परमेश्वर से हमें शांति मिले, let us share peace with some other family also. किसी और परिवार के साथ में क्यों ना हम इसे बांटे। Hallelujah. If we have received healing, अगर हमें चंगाई मिली है, let us share that with other families also. क्यों ना दूसरे परिवार के साथ में इसे बांटे। If we have received the revelation of the word of God, अगर परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमें मिला है, let us not just hold it within us and apply it in our lives. सिर्फ उसे अपने जीवन में पकड़ के रखे और सिर्फ उसे कार्य अपने जीवन में ना करे, Let us share it. उसे दूसरे से भी बांटे। And God is going to bless us. फिर उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष। Matthew 10 and verse number 8. मत्ती 10:8। Jesus says, freely you have received, so freely give. आजादी से आपको मिला है तो आप आजादी से उसे बांटे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us rise up on our places. क्यों ना आप अपनी जगह पर हम खड़े And this हैं। time we are going to pray और आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। and just commit our lives in a fresh way into the hands of God. क्यों ना परमेश्वर के हाथों में ताजगी से अपने जीवन को समर्पित करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I just want to give you the next 2 minutes. अगला 2 मिनट में आपके पास में देता हूँ। Just connect with God परमेश्वर के साथ में वो जुड़ लेगा, and personally talk to Him. व्यक्तिगत तौर पे उससे बात करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And as you are opening your heart to the Holy Spirit, जैसे पवित्र आत्मा के लिए आप अपने हृदय को खोल रहे He हैं, is ministering to you. वो आपके जीवन से सेवा He करें। is showing you people वो आपको लोग दिखा रहे हैं who you need to disciple, जिसके लिए जिनको आपने शिष्य बनाना who है, you need to become a father to, जिसके लिए आपने एक पालक who बनना you है, need to become a mother to, जिसके लिए आपने एक माता बनना who है, you need to go on your knees and pray and intercede for them. जिसके लिए मध्यस्थी आपको करनी है घुटनों पे आकर। The Holy Spirit is showing you. पवित्र आत्मा आपको दिखा रहा है। Open your heart to Him. अपना हृदय उनके लिए आप खोलें। He is here. वो इसी समय यहाँ पे है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Master. धन्यवाद मालिक। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। For in the days to come, आने वाले दिनों में you are raising fathers and mothers in this church. इस कलीसिया में से माता पिताओं को आप उभारने वाले हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद For परमेश्वर, we won't only be people who will be receiving, क्योंकि हम सिर्फ ग्रहण करने वाले लोग नहीं but we will बनेंगे, be generous. लेकिन हम उदार बनेंगे। We will be giving हम देंगे what we have received जो freely from हमें you. मुफ्त में मिला है आपसे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We bless your name. हम आपके नाम को आशीष We bless देते your name. हैं। आपके नाम को आशीष We देते bless you, Jesus. हैं। हम आशीष देते हैं यीशु। Thank you. धन्यवाद। Talk to him. Talk उनसे to the बात Holy कीजिए, Spirit. उनसे बात कीजिए। Jesus. Jesus. Come and move. Reveal to your people अपने लोगों को अवतरित करें। their purpose in this season. इस मौसम में वो क्या करें? We don't want to be like that Dead Sea, उस डेड सी के समान हम नहीं होना चाहते, but we want to be like that
living water, हम जीवित पानी के समान होना चाहते हैं, which will be a blessing to many. जो बहुतों के लिए आशीष बनेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Maybe once you were very active. हो सकता है एक समय था जब आप में वो जज्बा था। Maybe you were even a part of the leadership. हो सकता है एक समय था जहाँ पे आप नेतागणों में एक हिस्सेदारी करते थे। You know that God has called you for a purpose. आपको पता है परमेश्वर ने एक कारणवश आपको बुलाया है। Thank you, Jesus. Just ask the Lord, आप परमेश्वर से Lord, in this season, what do you want me to do? इस मौसम में मैं आपके लिए क्या करूं? Reveal to me, Holy Spirit, वो प्रतीत करे परमेश्वर, and He will guide you. वो आपको मार्गदर्शन He करे, will show you people वो आपको लोग दिखाएंगे that you need to connect to, जिसके साथ में आपने संपर्क करना है, that you need to start praying for, जिसके लिए आपने प्रार्थना करना है। that you need to call and just ask them how they are doing. आपने सिर्फ एक फोन कॉल करके पूछना है कि वो कैसे है। The Lord is showing you those people. परमेश्वर आपको ऐसे लोग Do दिखाए not neglect His voice. और उनकी आवाज का देखा ना करें, For in this time, क्योंकि ऐसे ही समय में in this church, इस कलीसिया He में wants to do great and mighty things. वो महान कार्य करना चाहते हैं, He wants to strengthen us. वो आपको ताकत देना चाहते हैं And before even He sends us out, और हमें आगे बढ़ने से पहले He wants to fill us with power and might. वो हमें वो ताकत के साथ में वो भरना चाहते हैं। He wants to minister to us before we become ministers to others. वो पहले हमारी सेवकाई करना चाहते हैं, हम किसी और की सेवकाई करने से पहले। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। This church is yours. ये कलीसिया आपकी है। You said, I will build my church, आपने कहा मैं अपने कलीसिया को स्थापित and the gates करूंगा of hell shall not prevail against it. और नरक के द्वार उसके खिलाफ कभी प्रबल ना This होंगे। is your church. ये आपकी कलीसिया These है, are your people. ये आपके लोग हैं। Jesus, come and touch your people. यीशु आकर अपने लोगों को स्पर्श करें, Minister to them. उनकी सेवकाई आप करें, Take them on a new level, Lord. एक नए पड़ाव में उनको On लेके a जाए, new level. एक नए पड़ाव में लेके जाए। For so many years, maybe some of them might be stagnant. हो सकता है बहुत से लोग इतने सारे सालों से वहीं पे है जहाँ पे But हैं, in this season, लेकिन इस आने वाले मौसम में we speak and declare new levels in Jesus' name. हम घोषित करते हैं उनके जीवन में एक नया पड़ाव आएगा, New doors to open in Jesus' name. नए दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद For यीशु, you are at work within us. क्योंकि हमारे अंदर आप कार्य कर रहे You are हैं, at work among us. हमारे अंदर आप काम कर रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद We परमेश्वर, bless you. आपके नाम को We आशीष bless देते your हैं, name. आपके नाम को आशीष We bless you, Lord. आपको आशीष देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Can we give a clap offering to Jesus? आइए जोरदार